of you. I request everyone to switch on their cameras if possible. I request everyone to switch on their cameras. Rohit, Amandeep, Pooja, Nikhil, Arjit, Nausheen. Everyone, please try to switch on your cameras. Okay, I'm seeing faces now. So good to see all these are like all of your faces. So we will start with our today's class. Firstly, I'll introduce Truely Technology to you all. So Truely Technology Private Limited has a successful track record in the field of academia, research, training, recruitment, and job assistance since its inception in 2018. We also offer training and internship for all levels of professional world. It starts from plus two level to a seasoned professional. We in Struville Technology emphasized academic and research development, as no civilization can survive without education and can't progress without research. We work with each applicant to prepare them for employment ready. Struville Technology bridges the gap between employer and employee via industry or product specific selection and pre-employment training. Just for a quick look, I am sharing my screen and showing you all the unique services which we Struville Technology Private Limited family holds. So I'll be sharing my screen now. My screen visible to you all? Yes, ma'am. Okay, thank you for the confirmation. So, for learning and teaching platform where we provide comprehensive courses which are like crafted with industry leaders for career advancement, we have Prayug. For of like hands-on internship programs, we have is to intern with us. For like for making AI resumes, we have Resumotion, and we have our job portal which offers like personalized career guidance and job search support. That is Navrojan. Then for like diverse study materials and interactive courses, we have Vidyapun. For psychometric test, we have Sudakshta. For research, like PhD and everything, like PhD expert assistance, we have Anushram for that. So these are the all the services which we offer at Stueli Technology. And now I'll introduce you all to your trainer for this digital marketing course. So your trainer is Shivani Goyal. She is a digital marketing trainer with extensive experience in training, and she has expertise in building, maintaining, and running successful digital marketing campaigns, bringing forth a broad marketing knowledge coupled with focused campaign experts. She has like over 6+ years of experience in this field. So, Shivani Goyal, ma'am, over to you. Thank you so much, Arju. So let me first introduce myself. I'm Shivani Goyal. I'm a digital marketing trainer. And as Arju already told me a little brief about myself. Okay. So let's start with the today's session. Okay. So our today's session is based on digital marketing. Okay. In our today's session, we will learn how AI is used in digital marketing. Okay. So I'm just going to share my screen, everyone. Yeah. Am I clearly audible, everyone? Can you all please confirm with a yes or no? Yes, ma'am. Yes, yes. Oh, that's fine, everyone. So I'm just going to share my screen, everyone. Please have a look. Okay.
So before starting the today's session, first I want to know like which mode you all are comfortable in. You want this session is in English or in English language? Which mode you all are comfortable? Yes, ma'am. Both. Okay, in English or completely in English? What you want? Hindi and English both. Hindi and English both. That's completely fine. That's completely fine, everyone. Okay, that's fine. Okay, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड करियर ऑप्शंस आपको मिलने वाले। ओके, आज के सेशन में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और किस तरह की रिक्वायरमेंट आपको इस कोर्स को करने के बाद आगे कंपनीज में मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग, राइट, एंड कैसे हम एआई टूल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग टूल्स को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग 2 वर्ड से बना है। The first one is digital and the another one is marketing. डिजिटल का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो हम ऑनलाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप सब ये क्लास ले रहे हो, कैसे ऑनलाइन ले रहे हो, राइट? तो इस क्लास को हम कहेंगे डिजिटल क्लासरूम। और इसी तरह हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम एक्टिविटी डिजिटली करते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करना, राइट, ऑनलाइन शॉपिंग करना। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी डिजिटल एक्टिविटी है। ओके, मार्केटिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में अपनी ऑडियंस को बताते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप सभी के पास अपनी एक शॉप है और आपकी शॉप पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब आप अपनी ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बताओगे? पहले हम इस प्रोसेस के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज करते थे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी कि हम अपनी शॉप के बाहर बड़े बड़े बैनर्स लगाते थे, राइट, हम अपने पैम्पलेट्स प्रिंट कराते थे और उनको डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये सब हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स है जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यूज करते थे। लेकिन इस मेथड से हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती थी और प्रॉफिट बहुत ही कम मिलता था। सेकेंडली, हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की हेल्प से लार्जर ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाते थे। ओके, इसीलिए आज हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में मैं उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने वाली हूं जो आप और हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। वी ऑल आर यूजिंग फेसबुक, वी ऑल आर यूजिंग व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर। ये सब हमारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से कैसे हम अपनी ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, यही मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। इस प्रोसेस के दौरान हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है और प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। ऐसा बात करते हैं कि आज हम डिजिटली मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आज मैक्सिमम ऑडियंस मैक्सिमम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एंगेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है और यहाँ पर जो डाटा आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर यूजिंग इंटरनेट are 5.64 billion, right? Total percentage 68.7%, जिसमें से आज कितने परसेंट यूजर इंटरनेट यूज कर रहे हैं आप देख सकते हैं 68.7% हमारी टोटल पॉपुलेशन का पार्ट आज इंटरनेट को यूज कर रहा है। ओके, आप देख सकते हैं एवरेज वीकली कितना टाइम आज यूजर इंटरनेट पर स्पेंड कर रहे हैं 33 आवर्स 23 मिनट। एंड ऑन एन एवरेज एक सिंगल डे यूजर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है 6 आवर 56 मिनट। ओके, तो ये डाटा हमें बताता है कि आज डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप कोई भी स्टार्टअप प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहो
लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटली ग्रो कैसे कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, जैसे ही आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला कौन सा प्लेटफॉर्म आपके माइंड में आता है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस या वीडियोस को ऐड कर सकते हो? ऐसा कौन सा प्लेस है जो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि यहाँ पर मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए? इज देयर एनी प्लेस एवरीवन जहां से हमें फेसबुक ज्यादा से फेसबुक ज्यादा ऑडियंस मिल फेसबुक सके? इंस्टा। वेरी नाइस, यस वी हैव फेसबुक, इंस्टाग्राम। आपने इन दोनों प्लेसेस के बारे में क्यों कहा? क्योंकि हमारी ऑडियंस सबसे ज्यादा इन प्लेटफॉर्म्स पर एंगेज है और हमें वही प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हमारी ऑडियंस सबसे ज्यादा एंगेज है। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आज मैं इंटरनेट यूजर्स की बात करूं तो आज हमारे इंटरनेट यूजर्स इंडिया में किन किन प्लेटफॉर्म्स पर एंगेज हैं देखिएगा। सबसे पहले हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, राइट? अब आप सभी के पास स्मार्ट टीवी है एंड आप सभी को पता है दैट वी ऑल आर यूजिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, राइट? तो यानी कि अगर हम इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एड्स रन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करते हैं, तो आप सोचिए कि हम कितने परसेंट ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे। 707 मिलियन यूजर्स को हम टारगेट कर सकते हैं, राइट? इन द सेम वे कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 621 मिलियन यूजर्स को हम टारगेट कर सकते हैं। हाउ? बाय आवर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग की हेल्प से, ईमेल मार्केटिंग की हेल्प से, राइट? जैसे ही यूजर हमारी वेबसाइट पर आता है, साइन अप करता है, राइट, एट द सेम टाइम हम उसको एक ईमेल सेंड करते हैं कि ये हमारी सर्विसेज है, ये हमारे प्रोडक्ट है, दिस इज द वेलकम मेल, राइट, जो ऑटोमेटिकली सेंड होती है हमारे कस्टमर्स को। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे लीड मैग्नेट्स हैं। लीड मैग्नेट्स का मतलब होता है अपनी ऑडियंस को कैप्चर करना अपने बिजनेस की तरफ, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस कोर्स के दौरान आप यही सब चीजें सीखने वाले हैं। यूट्यूब पर कैसे अपना अकाउंट बनाना है, कैसे यूट्यूब मार्केटिंग करनी है, व्हाट्सएप एपीआई क्या है, कैसे हम व्हाट्सएप पर अपना बिजनेस अकाउंट बनाकर ऑटोमेटेड मेल्स, बल्क एसएमएस अपनी ऑडियंस को सेंड कर सकते हैं। ओके वहीं पर आप देख सकते हैं कि आज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैक्सिमम ऑडियंस एंगेज है। 575 मिलियन यूजर्स आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा सुटेबल है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अभी आपने कहा कि हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर अपनी एड कैंपेन्स को रन करेंगे, राइट? यहां हम अपने बिजनेस को लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही सोचा है आपने, राइट? यस। अब आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, स्नैपचैट, आ रहे हैं रेडिट एंड बोल पिनिंग। दो ही। It's my humble request to everyone, can you please make your mic on mute just to avoid some background disturbance? Okay, thanks a lot everyone. तो आप देख सकते हैं these are our social media platforms and इन social media platforms पर हम अलग अलग तरीके का कंटेंट ऐड करके अपनी ऑडियंस को गैदर कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आज इंटरनेट पर अलग अलग एज ग्रुप की ऑडियंस भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम एज 16 टू 65 प्लस एज ग्रुप के जो ऑडियंस है वो आज हमारे इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एआई टूल की हेल्प से ये गेस करना सिखाती हूँ कि हम अपने प्लेटफॉर्म्स को कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें किस तरीके से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को ऐड करना चाहिए। ओके चलिए, तो इसके लिए एक लाइव डेमो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके एवरीवन प्लीज हैव अ लुक। चलिए सबसे पहले मैं इस टूल का यूज कर रही हूँ। द नेम ऑफ द टूल इज चैट जीपीटी। हैव यू हर्ड दिस नेम एवरीवन? यस और नो? यस। वेरी नाइस। ठीक है, अगर मैं एआई टूल्स की बात करती हूँ, व्हाट इज दिस एआई और ये एआई टूल्स क्या है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई टूल्स का मतलब होता है वो टूल्स जो हमें इस तरीके का डाटा प्रोवाइड करते हैं
which is totally look like real and natural. एग्जाम्पल के लिए आपको एक रिसर्च करनी है और उस रिसर्च के दौरान आप मल्टीपल टूल्स का, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का यूज कर रहे हैं, राइट? लेकिन आपके एआई टूल्स आपके एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर एक डिटेल फॉर्म में इस तरीके से देते हैं जिसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये किसी एआई टूल ने नहीं, किसी पर्सन ने रिसर्च करके आपको दिया है। इसी का एक एग्जांपल अभी यहां पर आप देखेंगे। चैट जीपीटी का यूज हम अपने ऑडियंस के बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए, राइट? ऑडियंस किन प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है, किस तरीके के कंटेंट को पसंद कर रही है, क्या हमें अपनी वेबसाइट पर ऐड करना चाहिए, किस तरीके की लाइन से हम अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, इन सभी चीजों के लिए किया जाता है। तो अभी जैसे आप चैट जीपीटी देख रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इस टूल की हेल्प से एक रिसर्च करके दिखाती हूँ। मैंने यहां पर एक प्रॉम्प्ट ऐड किया है, क्रिएट ऑडियंस फॉर माय बिजनेस, फॉर माय बिजनेस। आप एज्यूम कीजिए कि मेरा एक ज्वेलरी का बिजनेस है, जस्ट लाइक क्लेरा, ठीक है? यहां पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये एक वेबसाइट है, राइट? वेबसाइट का मतलब होता है इंटरनेट पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम अपने सभी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ये एक सिंगल प्लेस है जहां पर आपको हमारे सभी प्रोडक्ट्स एडेड मिलेंगे, ठीक है? तो ये क्या बन गई, ये एक वेबसाइट बन गई। इस वेबसाइट को लेकर अब मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हमारी ऑडियंस इन प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम कहां सर्च कर रही है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ओके? तो अब मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया कि क्रिएट ऑडियंस फॉर माय बिजनेस। अब मुझे अपना बिजनेस भी बताना होगा, तो मैं क्या बताऊंगी, ज्वेलरी बेस्ड बिजनेस, ठीक है? यहां पर अब मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहती हूं, तो मैंने ऐड किया क्रिएट ऑडियंस सेगमेंटेशन इन टेबल फॉर्म। दिस इज माय सेकंड लाइन, ठीक है? अब यहां पर कुछ और चीजें भी मुझे जाननी है, जैसे कि विच प्लेटफॉर्म दे आर इंटरेस्टेड इन एंड विच टाइप ऑफ कंटेंट दे लाइक ऑन। सोशल मीडिया भी आप ऐड कर सकते हो और फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ऐड कर सकते हो। लेट मी ऐड सोशल मीडिया, ओके? अब यहां पर आप देखिएगा इन 3 लाइंस के प्रॉम्प्ट में मुझे किस तरीके का आंसर मिलता है और कितनी रिसर्च मेरी यहां पर कंप्लीट हो गई। देखिएगा, सबसे पहला मुझे मेरी ऑडियंस के बारे में पता चल गया और मेरी जो भी ऑडियंस है उसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया, राइट? आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप सभी की ऑडियंस का सेगमेंट अलग अलग है। अब आप कहेंगे हम तो रियल एस्टेट का काम करते हैं, राइट? अब रियल एस्टेट में भी आपकी ऑडियंस अलग अलग है, होम बायर्स अलग हैं, राइट? जो लग्जरी प्रॉपर्टीज देख रही हैं वो अलग हैं, राइट? तो आप अपनी अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं। इन द सेम वे अब हम अपनी सोशल मीडिया पर भी अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हुए अलग अलग तरीके के कंटेंट को ऐड करेंगे। जैसे कि ब्राइड्स टू बी, ये एक ऑडियंस है, इसमें आप फीमेल्स को टारगेट करेंगे, 23 to 35 ये आपका एज ग्रुप रहेगा। एंगेज्ड और प्लानिंग वेडिंग, इन ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे, ये उनका इंटरेस्ट एरिया है और प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म है उनके इंस्टाग्राम एंड पिनिंटरेस्ट, राइट? और इसके लिए सोशल मीडिया पर किस तरीके का कंटेंट आप ऐड कर सकते हो, ब्राइडल लुक बुक्स, राइट? रील्स ऑफ ब्राइडल शूट्स, टेस्टिमोनियल्स, बिहाइंड द सीन ऑफ कस्टम ज्वेलरी, राइट? ये चीजें आप ऐड कर सकते हो, दिस इज योर कंटेंट, ओके? नेक्स्ट आप देखिएगा अलग अलग सेगमेंट यहां पर आपकी बन गई हैं और आपके सेगमेंट्स की कोरस्पॉन्डिंग आपको यहां पर एज ग्रुप, इंटरेस्ट, प्रेफर्ड लोकेशन एंड सोशल मीडिया कंटेंट, ये सभी चीजें मिल गई। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? प्लीज हेल्प मी आउट विद द यस और नो क्विकली। Yes. वेरी नाइस, Yes, ma'am. वेरी नाइस एवरीवन, राइट? तो अब अपनी ऑडियंस के बारे में जानने के बाद और अपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानने के बाद अब हमें क्या करना है? व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप? ऑडियंस पता है, प्लेटफॉर्म पता है,
कौन सा कंटेंट वो पसंद कर रहे हैं वो भी पता है। तो अब हमें क्या करना है, प्लेटफॉर्म्स एडवर्टाइज पर आवर जा, प्रोडक्ट। राइट राइट राइट, हमें प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपने अकाउंट बनाने हैं। ओके, कैसे बनाएंगे देखिएगा। जैसे अगर मैं आपको इस वेबसाइट की सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखाऊं, तो आप देख सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ये तीनों इस वेबसाइट की सोशल मीडिया प्रेजेंस है। तो सबसे पहले लेट मी क्लिक ऑन दिस फेसबुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम फेसबुक पर अपना पेज क्रिएट करेंगे, जिसमें आप अपना अच्छा सा कवर पेज, लोगो ऐड करेंगे। व्हाई? इसकी क्या नीड है? इसकी क्या नीड है? दिस इज आवर ब्रांड आइडेंटिटी। जब हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं ब्रांड, इस ब्रांड का मतलब क्या होता है? इस ब्रांड का मतलब होता है कि लोग हमें हमारे नाम से जाने, राइट? आज अगर मैं बोल रही हूँ क्लेरा, राइट, ये एक नाम है। जब आप इस नाम को सर्च करेंगे गूगल पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो आपको मेरे बिजनेस से रिलेटेड इमेजेस दिखाई देंगी। ये मतलब होता है ब्रांड का, ठीक है? तो इस ब्रांड नेम को क्रिएट करने के लिए, इस लोगो को बनाने के लिए, राइट, इस कवर पेज को बनाने के लिए हम एक टूल को यूज करने वाले हैं, एंड द नेम ऑफ द टूल इज कैनवा। कैनवा ये एक ऐसा टूल है जो आपको कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग में हेल्प करेगा थ्रू आउट द कोर्स। अब आप कहेंगे व्हाई कैनवा? आज हमारे पास इतने सारे एआई टूल्स हैं जो हमें इमेजेस जनरेट करके देते हैं, राइट? यूज परप्लेक्सिटी, मेटा एआई, जेस्पर, मिडजर्नी, राइट? ये सभी टूल्स हैं जो हमें इमेजेस, वीडियोस जनरेट करके देते हैं। गामा जो हमें पीपीटी जनरेट करके देते हैं, पीडीएफ जनरेट करके देते हैं। देन हम कैनवा क्यों यूज करें? लेट मी शो यू। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कैनवा एआई की। यस, कैनवा एआई भी आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो आपको लोगो, प्रेजेंटेशन, पीपीटी, राइट, ये देखिएगा, वीडियो, इमेजेस, इन सभी को जनरेट करने में हेल्प करता है। अब कैनवा की हेल्प से बहुत इजीली इन सभी चीजों को जनरेट कर सकते हैं। अब यहीं पर मान लो मैंने कैनवा एआई इमेज जनरेटर का यूज किया, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एआई की हेल्प से इमेज जनरेट करना, एंड देन उस इमेज को यूज करके अपना एक कस्टमाइज कंटेंट बनाना किसे कहते हैं। देखिए, ये मेरा कैनवा एआई है, और इस कैनवा एआई में अब मैं एक एआई इमेज को जनरेट करके आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज को जनरेट किया। ज्वेलरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ज्वेलरी मेकिंग इमेज ले ले। देखिएगा, ज्वेलरी मेकिंग इमेज। ओके, लेट मी क्लिक ऑन जनरेट एआई इमेज। ठीक है, मान लेते हैं मुझे इस इमेज को सोशल मीडिया पर यूज करना है। अब देखिएगा इस अकाउंट में किस तरीके से इमेज को जनरेट किया। ये वीडियोस है, राइट, अगेन ये वीडियोस है, अगेन ये आपकी वीडियो है, ये आपकी इमेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेजेस यूज की गई हैं वो आपकी कस्टमर जनरेटेड इमेजेस, जिसको हम यूजर जनरेटेड इमेजेस भी बोलते हैं, और इस तरीके से वीडियोस को क्रिएट किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, इस तरीके से इमेजेस को जनरेट किया गया है। दीज आर रियल। अब मान लो यही मुझे एआई की हेल्प से जनरेट करना है, तो आप एआई की हेल्प से भी जनरेट कर सकते हो। ये देखिएगा, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी इमेजेस हैं, मैंने इन 2 इमेजेस को यहाँ पर चूज कर लिया। अब देखो ये वाली जो इमेज है, अगर आप इसको एज इट इज अपने सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर ऐड करते हो, राइट, तो ये उतना बेटर लुक नहीं दे रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं इसको भी समझिएगा। मैं आपको कैनवा में वो टेम्पलेट्स दिखाती हूं जो हम अपने सोशल मीडिया पर या अपनी वेबसाइट पर अगर ऐड करेंगे, तो उससे बहुत बेटर लुक हमारी वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पोस्ट का आएगा। देखिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी टाइप फेसबुक पोस्ट। ठीक है, एंड फेसबुक पोस्ट आपको किस पर चाहिए? बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। तो ये मेरा कीवर्ड हो गया, राइट। एंड अब इस पर बेस्ड फेसबुक पोस्ट से रिलेटेड आप एक बार टेम्पलेट्स को देखिए। आप जो यहाँ पर ये टेम्पलेट्स देख रहे हैं, ये आपको कैनवा का प्रीमियम वर्जन मिलेगा, जिसमें आप इनमें से किसी भी टेम्पलेट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी प्रीमियम का साइन दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैनवा का प्रीमियम वर्जन है, और यही प्रीमियम वर्जन इस कोर्स के दौरान आपको मिलेगा। ओके, देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए मुझे अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, प्रोडक्ट मेकिंग को ऐड करना है, तो आप कुछ इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो।
ठीक है। अब जो ज्वेलरी इमेज मैंने आपको दिखाई एंड उसके बाद जो आप ज्वेलरी इमेज देख रहे हो, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना डिफरेंस है आपके टेम्पलेट्स में एंड इनमें से किस तरीके के टेम्पलेट्स को आपको यूज करना चाहिए। मैंने यहाँ पर ज्वेलरी मेकिंग इमेज को ऐड किया है और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के टेम्पलेट्स में आप इन इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारी इमेज है, राइट। यहाँ पर मैंने इस टेम्पलेट को चूज कर लिया। लेट मी क्लिक ऑन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ठीक है, अब इस टेम्पलेट में क्या क्या चीजें हैं जो आप कस्टमाइज कर सकते हो, ये देखिएगा, एवरीथिंग, राइट। यहाँ पर आप जितने भी ब्लू बॉक्सेस देख पा रहे हैं अभी मेरी स्क्रीन पर, आप इन सभी ब्लू बॉक्सेस को इजीली एडिट कर सकते हो, राइट। किसी भी पोस्ट को, किसी भी टेम्पलेट को आप किसी अदर टेम्पलेट्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन चॉकलेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी डोंट वांट टू मेक दिस टेम्पलेट बेस्ड ऑन चॉकलेट, हमें किस पर बनाना है, बेस्ड ऑन ज्वेलरी। ये आपकी वही एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, राइट, जिनको अभी अभी हमने क्रिएट किया है। सो लेट मी ऐड दिस, इसको मैंने यहां पर ऐड किया, डबल क्लिक करके मैंने इसको एडजस्ट किया ऐसे, राइट। एंड अब यहां पर आप चॉकलेट मेकिंग को रिप्लेस करके कैसे ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी मेकिंग वर्कशॉप, राइट। वेबसाइट को एडिट कर सकते हो, इस कंटेंट को इजिली ऐड कर सकते हो, अपना लोगो चेंज कर सकते हो, राइट, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, राइट। आपके एआई जनरेटेड इमेज में जो बैकग्राउंड है आप उस बैकग्राउंड को इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। ये देखिएगा, दिस इज योर वेबसाइट। यहाँ पर आप देखिएगा देयर आर सो मेनी कलर्स जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा, लाइक दिस यू कैन चेंज, ओके। ये देखिएगा, ये सब आप चेंज कर सकते हो, डिलीट करना है, ऐड करना है, यू कैन, ओके। एंड जब आप इन्हें सेव करेंगे तो इसको सेव करने के लिए प्रॉपर हाई क्वालिटी इमेज आप यहाँ से सेव कर सकते हो। ठीक है, अब वहीं पर अगर आपको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है, जैसा कि मैंने कहा, लोगो, कवर पेज, बैनर्स, राइट, ये सब चीजें आप यहां से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वी हैव सो मेनी टेम्पलेट्स जो आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ये देखिएगा, दीज आर द लोगोस, राइट, जो भी लोगो आपको डिजाइन करना है। उसके अलावा जब हमें वीडियोस बनानी होती है तो वीडियोस बनाने के लिए हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी वीडियो का इंट्रोडक्शन, हमारे एनिमेशंस, राइट। जैसे देखिएगा, ये एक वीडियो है, राइट, ये देखो किस तरीके से मूव हो रही है, राइट। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि एक टेम्पलेट हमारा कितना टाइम सेव कर रहा है। जो कंटेंट हम ऐड करना चाहते हैं, हमें इस पूरे कंटेंट में सिर्फ अपने कंटेंट को रिप्लेस करना है, ओके। ये सभी चीजें आप बिल्कुल डिटेल में इस कोर्स में सीखेंगे। चलिए, कंटेंट क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं कैसे हम सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट को ऐड करते हैं। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपने इन्वेस्टमेंट क्या की। लेट मी एक्सप्लेन यू। जब आपने फेसबुक पर अपना पेज बनाया, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। पेज बनाने के बाद आप जो पोस्ट ऐड कर रहे हो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड सेकेंडली, जब आप ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कैनवा यूज कर रहे हो, ये पूरा प्रोसेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन दैट प्लीज मेक योर माइक ऑन म्यूट इफ यू हैव नो क्वेश्चन, ओके। या नेक्स्ट देखिएगा, जब हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, आपको इस कोर्स के दौरान वहां पर भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, समझिएगा, देखिएगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। इस कोर्स के दौरान आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला, आप एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। यानी कि जो भी बिजनेस आप प्लान कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हो। बिजनेस एनालिटिक्स आप बन सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सभी चीजें इस सिंगल कोर्स से कैसे पॉसिबल है। लेट मी एक्सप्लेन यू। जब आप ये कोर्स कर रहे होंगे तो इस कोर्स के दौरान आप मल्टीपल स्किल्स सीखते हैं, जैसे कि वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, कंटेंट क्रिएट करना, अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करना, एड कैंपेन रन करना, ओके। और आज इन्हीं सभी स्किल्स की जरूरत डिजिटल बिजनेसमैन को है, ओके। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और आपके पास ये सभी स्किल्स कंप्लीट होंगी,
तो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट के बेसिस पर बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी गैदर कर सकते हैं। कैसे? अगर आज मैं बिजनेसमैन की बात करूं, सो मोर देन 98% बिजनेसमैन अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं। दे वांट टू रन देयर एड्स कैंपेन ऑन गूगल, ऑन मेटा, ओके, बिकॉज वहां पर ये छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके मैक्सिमम लीड जनरेट करना चाहते हैं। ओके, जब भी हम कोई भी एड कैंपेन रन करते हैं तो हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, लीड्स, सेल्स, ब्रांड अवेयरनेस, राइट, ये सारे ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल कर सकते हैं। इसीलिए इस कोर्स को करने के बाद आप एक एंट्री लेवल प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट। ट्रेनी में इसलिए नहीं बोल रही हूं क्योंकि आप इस कोर्स के बाद ऑलरेडी इंटर्नशिप करेंगे, राइट। इंटर्नशिप के बाद एज अ डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट, देन एक्सपर्ट, राइट, देन टीम लीड, देन मैनेजर, स्ट्रेटेजिस्ट, राइट, एंड देन इन लास्ट सीएमओ। इस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी पोजीशन गैदर कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी डेजिग्नेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाएगा। ओके, अब अगर मैं बात करूं बिजनेसमैन स्किल्स की, कि उन कौन सी स्किल्स हैं जिसकी जरूरत एक बिजनेस को डिजिटली ग्रो करने के लिए होती है, तो वो स्किल्स हैं वेबसाइट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मोर। ये जितनी भी स्किल्स की मैं बात कर रही हूं, ये सभी स्किल्स आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। ओके, वेबसाइट क्रिएशन की सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहला हमारा डोमेन नेम। डोमेन नेम यानी कि हमारा ब्रांड नेम, कि किस नाम से आप चाहते हो कि आपकी इंटरनेट ऑडियंस आपके बारे में जाने। जैसे अगर आज मैं कहती हूँ अमेजॉन, इस नाम को सुनते ही आप सभी के माइंड में एक इमेज आ जाती है कि मैं किस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ, अमेजॉन पे किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, राइट। तो वैसा ही एक नेम आपको डिसाइड करना है। कोई भी बिजनेस नेम आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। नेक्स्ट इज होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर एक स्पेस जहां आपकी वेबसाइट का सारा डाटा सेव होता है। और लास्ट आपको जरूरत है एक एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर, सिक्योरिटी लेयर सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट का यूज होता है हमारी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट HTTP होती है। इसको सिक्योर बनाने के लिए हम इस एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट HTTPS बन जाती है, यानी कि एक सिक्योर वेबसाइट बन जाती है। और ये तीनों ही चीजें आपको इस कोर्स के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप एक लाइव प्रोजेक्ट पर अपना ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकें। ये आपकी अपनी बिजनेस वेबसाइट होगी जिस पर आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। ओके, इतना ही नहीं, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, राइट, तो उसके लिए भी आप मल्टीपल डोमेन नेम बुक करके मल्टीपल वेबसाइट भी बना सकते हो। ओके, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। ओके, सो इस लाइव प्रोजेक्ट पर आप ये पूरा कोर्स सीखेंगे कि ये वेबसाइट बनाने के बाद इसको गूगल पर कैसे रैंक कराना है, एडवर्टाइजमेंट्स को कैसे रन करना है। लेट मी शो यू हाउ। इस वेबसाइट के साथ साथ आपको कुछ प्रीमियम टूल्स भी दिए जाएंगे, जैसे एलिमेंटोर का प्रीमियम वर्जन, कैनवा का प्रीमियम वर्जन। ये दोनों ही आपको हेल्प करेंगे आपकी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लेवल वेबसाइट बनाने। देखिएगा किस तरीके से। अभी आप सभी ने इस क्लेरा स्टोर को देखा। ये स्टोर हमारा शॉपिफाई पर क्रिएटेड है। ओके, सो शॉपिफाई पर भी इस तरीके का स्टोर बनाना आप सीखेंगे, राइट। कैसे हम ये अनाउंसमेंट बार, हेडर सेक्शन या अपनी हीरो इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं, ये सब आप सीखेंगे। इसके अलावा हम वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अभी आप जो ये विंडो देख पा रहे हो, जो इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, दैट इज आवर वर्डप्रेस इंटरफेस। ओके, यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। किस तरीके से, देखिएगा। वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास अलग अलग थीम्स होती हैं। आज मोर देन 80% वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस पर बनती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि आप जैसी भी वेबसाइट बनाना चाहते हो और जो भी फीचर्स आप अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हो वो सब वर्डप्रेस पर इंक्लूडेड है विदाउट कोडिंग। कोई कोडिंग हमें नहीं करनी। कैसे वेबसाइट बनाएंगे देखिएगा, हमने ऐड थीम बटन पर क्लिक किया और जिस भी तरीके की वेबसाइट आप प्लान कर रहे हैं आपने उस तरीके की वेबसाइट थीम को चूज कर लिया। जैसे मुझे ट्रेवल बेस्ड वेबसाइट चाहिए तो मैंने ट्रेवल कीवर्ड ऐड किया और इस कीवर्ड के कोरस्पॉन्डिंग मुझे ट्रेवल से रिलेटेड ऑलरेडी क्रिएटेड मेरी थीम्स दिखाई दे रही हैं, जस्ट लाइक योर कैनवा। ओके, अभी जैसे आपको ये अल्फा ट्रेवल वेकेशंस ये थीम आपको दिखाई दे रही है, राइट? सो एग्जैक्टली इसी तरीके से हम अपनी हर तरीके की वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। देखिएगा ये ट्रेवल है, नेक्स्ट वी ऐड रेस्टोरेंट, राइट? ये हमारी रेस्टोरेंट से रिलेटेड थीम्स हैं। ऐसे ही आप कैफे से रिलेटेड भी सर्च कर सकते हो। एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो ये एजुकेशन से रिलेटेड थीम्स हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर ये जो कंटेंट दिखाई दे रहा है, कुछ थीम्स के साथ ऑलरेडी कंटेंट आपको मिल जाता है और जिनके साथ ये कंटेंट नहीं मिलता उसके लिए हम एडिशनल प्लगइन्स को यूज करते हैं। ये प्लगइन्स क्या है समझिएगा। अब एग्जांपल के लिए आपने एक वेबसाइट बना ली, ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रैवल। वेबसाइट बनाने के बाद अगर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ स्पेशल फीचर्स को ऐड करना है तो हम प्लगइन्स की हेल्प से ऐड करेंगे। जैसे आपके पास आपका मोबाइल फोन है, राइट? हमारे मोबाइल में सभी गेम्स तो अवेलेबल नहीं है, राइट? तो हम अपने मोबाइल में अगर कोई भी गेम हमें प्ले करना है तो हम क्या करते हैं, आप बताइए। आपके मोबाइल में कोई गेम मुझे ऐड करनी है तो मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ? एवरीवन बताइए, अगर मुझे आपके मोबाइल में किसी भी गेम को ऐड करना है। प्ले स्टोर से ऐड कर लेते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। वेरी नाइस, प्ले स्टोर से ऐड कर लेते हो। क्या करते हो आप प्ले स्टोर से? ये हमारा प्ले स्टोर है। प्लगइन्स क्या है? प्ले स्टोर है हमारे वर्डप्रेस का, राइट? तो हम प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करके क्या कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, राइट? ये देखो वही सेम स्टेप हमें यहां पर करनी है ताकि हमारी वेबसाइट में हमारे प्लगइन्स ऐड हो जाएं। और ये प्लगइन हमें हेल्प करते हैं हमारे उन सभी फीचर्स को ऐड करने में जो हम अपनी वेबसाइट में चाहते हैं। अब जैसे मान लो अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करती हूँ तो मुझे रेस्टोरेंट पे सिर्फ अपने फूड मेन्यू को ऐड नहीं करना है, राइट? मुझे ऑर्डर भी कलेक्ट करने हैं, ये देखो, राइट? मुझे रिजर्वेशंस भी रखनी है, मुझे डिलीवरी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। एंड वहीं पर अगर मैं जोमेटो या स्विगी की तरह अपनी वेबसाइट बनाती हूँ तो मुझे मल्टी वेंडर्स को भी ऑप्शन देना है कि वो मेरी वेबसाइट पर ऐड हो सके, कनेक्ट कर सके, राइट? तो ये सारे फीचर्स आप प्लगइन से ऐड कर लेते हैं, इसीलिए आपको किसी भी एडिशनल कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और हर तरीके की प्रोफेशनल वेबसाइट आप यहां पर बना सकते हो। ओके, एंड अपनी वेबसाइट को आप मल्टीपल टूल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, कौन से टूल्स? मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स, राइट? गूगल टूल्स, उसके लिए हम गूगल साइट किट, एआई बोट्स जिसके लिए हम TIDIO चैट बोट्स को यूज कर लेते हैं। ये सब भी हमारे प्लगइन्स ही रहते हैं। ओके, तो ओवरऑल लेट मी समराइज, मैं इसको समराइज करती हूं। तो यहां पर आप एक प्रोफेशनल लेवल वेबसाइट जनरेशन सीखेंगे और टेम्पलेट्स के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा वी हैव सो मेनी टेम्पलेट्स प्लगइन, जैसे कि ये फ्री किट्स हैं, ठीक है? इसमें जो टेम्पलेट आप देख रहे हो वो टेम्पलेट्स एज इट इज आपके पेज पर ऐड हो जाए, राइट? उसके बाद आपको जो भी एडिटिंग करनी है कैनवा की तरह आप इनको एडिट कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल है। पहले जिस वेबसाइट को बनाने में हमें 3-4 मंथ्स इस तरीके से टाइम लगता था, आज उसी वेबसाइट को बनाने में हमें सिर्फ 1 और 2 डेज का टाइम लगता है। 1 और 2 डेज में हमारी एक प्रोफेशनल लेवल वेबसाइट रेडी हो जाती है, मैक्सिमम ऑफ 10 और 20 पेजेस। इस तरीके की वेबसाइट हम इजीली रेडी कर सकते हैं। ओके, यहां तक सभी चीजें अच्छे से क्लियर है एवरीवन? प्लीज हेल्प मी आउट विद यस और नो। यस मैम। That's really great. That's really great, everyone. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेबसाइट क्रिएट करने के बाद और सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने के बाद अब हम
अपनी इस वेबसाइट को गूगल पर कैसे रैंक करेंगे। गूगल पर रैंक करना किसे कहते हैं समझिएगा। जैसे अभी मैंने एक कीवर्ड टाइप किया, सिल्वर पेंडेंट फॉर वुमेन। इस कीवर्ड के कोरस्पॉन्डिंग हमें कुछ एड रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है पेड रिजल्ट, स्पॉन्सर्ड यानी कि पेड रिजल्ट। और स्पॉन्सर्ड के बाद नीचे हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट। और इन्हीं रिजल्ट में आपको थर्ड नंबर पर क्लेरा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ये आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट कैरेट लेन, ये सेकेंड, एंड देन थर्ड नंबर पर है clara.in। तो अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर टॉप पोजीशंस में रैंक कराने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। और पेड रिजल्ट्स में अपने रिजल्ट को रैंक कराने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो कहलाता है सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, दिस इज योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिस प्रोसेस की हेल्प से हम ऑर्गेनिकली रैंक कराते हैं। ठीक है, आप ये दोनों ही प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में इस कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, एड कैंपेन कैसे रन करना है, कितना बजट लेना है, बिडिंग कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, एवरीथिंग यू विल लर्न इन दिस कोर्स। अब बहुत से लोग Amazon से भी शॉपिंग करते हैं। अब मान लीजिए आपने मुझे अपनी वेबसाइट का एक लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया। कैसे? मैंने सोशल मीडिया पर सर्च किया रिंग्स फॉर वुमेन, ये मेरा कीवर्ड है, राइट। मैंने इसको सर्च किया। इसको सर्च करने के बाद मुझे बहुत सारी पोस्ट सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आप देख सकते हो, जैसे ये हमारी एक पोस्ट है, राइट। यहाँ पर अगर मुझे इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो मुझे कहाँ विजिट करना होगा, इस वेबसाइट पर, राइट। नीचे मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ पर मैंने देखा अगर मुझे इस प्रोडक्ट को खरीदना तो मुझे कहाँ पर क्लिक करना होगा, इस लिंक पर, या मुझे इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा। ठीक है, अब इन द सेम वे अगर मुझे कहीं पर भी डायरेक्ट Amazon का लिंक मिल जाए, राइट, तो मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्ट Amazon पर ही इसको विजिट कर सकती हूँ। किस तरीके से देखिएगा, लेट मी शो यू हाउ। अभी जैसे ये मल्टीपल रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर Amazon का लिंक भी दिखाती हूँ, देखिएगा। जैसे यहाँ पर ये adamexpress.online लिखा है कि मुझे इसको खरीदना है तो मैं यहाँ विजिट करूंगी। अब देखो, एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं। अगर इन केस मुझे Amazon की किसी भी प्रोडक्ट को अपने ऑडियंस को सेल करना है, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा आपको क्लेरा, जीवा, ये सब प्रोडक्ट दिखाई दे रही हैं। आप एज अ सेलर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, ये मेरा नहीं है, ये किसका है, जीवा का है, और सेलर कौन है, Amazon है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में सेव करूँ या अपनी ऑडियंस को सेल करूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट की इमेजेस, कंटेंट, ये सब यहाँ से कॉपी करके सोशल मीडिया पर ऐड करूंगी और गेट लिंक बटन पर क्लिक करके यहां से मैं एक लिंक जनरेट कर लूं। इस लिंक के अंदर मेरी स्टोर आईडी एडेड होती है, जिससे सीधा Amazon एसोसिएट अकाउंट में जैसे ही यूजर ने इसको परचेज किया इनकम ऐड हो जाएगी। यानी कि मैं इस एफिलिएट मार्केटिंग से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकती हूँ। मुझे 5% कमीशन मिलेगा अगर कोई भी यूजर मेरे इस लिंक पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो। और ये प्रोसेस आपका एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। और इस कोर्स के दौरान आप ये सभी चीजें भी बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। ओके, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिर्फ जॉब या बिजनेस में ही आपको हेल्प नहीं करता है, बल्कि ये आपको ऑनलाइन अर्निंग, खुद से अर्निंग के लिए ऑप्शंस भी देता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपको एसईओ आता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है, राइट, तो हमारे पास फ्रीलांसर की तरह बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ऑन पेज एसईओ एनहांसमेंट, राइट, ये देखिएगा, टेक्सटाइल, हाई क्वालिटी लेजर टेक बैकलिंक्स, राइट, Amazon एडवर्टाइजिंग, ऑपरेशन, यहाँ पर देखिएगा ऑपरेशन एक्सपर्ट नीडेड, कमीशन बेस्ड सेल्स एक्सपर्ट, राइट। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप इस कोर्स को करने के बाद इजीली कर सकते हो, राइट, ऑन मंथली बेसिस, ऑल्सो ऑन आवरली बेसिस, आप इसको इजीली कर पाए। ये सभी स्किल्स आपके पास हैं जो नीचे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड है।
अब मैं बात करती हूँ आपकी इस कोर्स के बारे में कि बेसिकली इस कोर्स में क्या क्या चीजें आपकी इंक्लूडेड है। सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मॉड्यूल, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, राइट, मार्केटिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, मार्केटिंग मिक्स, ब्रांड पोजीशन किसे कहते हैं, एवरीथिंग वी विल लर्न। After that, we will learn SEO, right? WordPress, Google Analytics, right? अलग अलग टूल्स हमारे पास रहेंगे, जिसमें हमारे more than 30 प्लस AI टूल्स, more than 30 प्लस डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, ये सब हम इस कोर्स के दौरान पढ़ने वाले हैं, राइट? उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड सोशल एड्स, मोबाइल मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, वीडियो मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, competitive analysis, affiliate marketing, email marketing, international growth, everything is included. 3 months का हमारा ये कोर्स रहेगा, जिसमें एक क्लास हमारी 1 आवर की रहेगी। कोर्स के दौरान प्रॉपर LMS आपके पास रहेगा, जिसमें आपकी ई बुक्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू विल गेट, राइट? साथ ही आपकी क्लासेस 3 days पर वीक रहेंगी। दैट विल बी ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, अल्टरनेट डेज पर आपकी क्लासेस रहेंगी। और जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है, आपको प्रयुक्त से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके बाद आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। इंटर्नशिप का मोड ऑनलाइन रहेगा एंड इस इंटर्नशिप के बाद आपको 2 month इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आप अपनी इंटर्नशिप ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद प्लेसमेंट असिस्टेंस भी आपको मिलेगा। प्लेसमेंट के लिए जैसे कि आपने देखा कि हमारा अपना खुद का पोर्टल है, जिसमें आप मोर देन 112 प्लस कंपनीज के साथ, राइट, आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें MNCs, नॉन MNCs, सभी तरीके की कंपनीज हैं, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी अप टू 25,000 रुपीज पर मंथ रहती है एट इनिशियल लेवल, जो कि बहुत ही फाइन सैलरी है। आपका मोड ऑफ वर्किंग ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ये आपका कंपनी टू कंपनी वेरी कर, ओके? इसमें अब स्टार्ट करते हैं एक बेसिक डेजिग्नेशन के साथ, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट रोल। ये रोल भी हमारा कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, राइट? एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और इसके बाद आप स्पेशलिस्ट, टीम लीड, स्ट्रेटेजिस्ट और एनालिस्ट, इस तरीके से जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी डेजिग्नेशन भी इंप्रूव होती जाती है एंड अकॉर्डिंगली आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाता है। अगर मैं आपको रियल डाटा दिखाऊं कि आज डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे अवेलेबल हैं, तो आज आप सिंपली फॉर यूर इंक्वायरी ओनली आप सिंपली गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, ठीक है, मैंने सिंपली ये कीवर्ड सर्च किया और अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास, ये देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग, लेट मी एट एग्जीक्यूटिव, बिकॉज स्टार्टिंग लेवल पर अभी हम देख रहे हैं, ये देखिएगा एग्जीक्यूटिव जॉब्स, ये देखो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोर देन 100 प्लस जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अभी आपके पास अवेलेबल है ओनली ऑन गूगल, राइट? और यही जब आप देखेंगे ऑन, देखिएगा ऑन लिंक्डइन, ऑन जॉब है, अलग अलग पोर्टल्स पर ये जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, यू कैन ज्वाइन, ओके? आप देख सकते हैं जैसे जैसे डेजिग्नेशन इंप्रूव हो रही है, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है और आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग जॉब पोर्टल्स पर आपके नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होती जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग में जॉब नहीं करनी है, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो आप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी जॉब ले सकते हो, राइट? सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप देख सकते हो अलग अलग जॉब पोर्टल्स पर नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको बहुत अच्छा पैकेज भी मिल रहा है। और अगर आप इस पैकेज के साथ साथ कुछ फ्रीलांसिंग प्लान करते हैं, फ्रीलांसिंग जो कि एक साइड इनकम का बहुत अच्छा स्कोप है, और अगर आपको मैक्सिमम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, 4 to 5 प्रोजेक्ट्स भी अगर आप इन अ मंथ डील कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा मंथली अमाउंट अर्न कर सकते हैं। इवन आप अपनी रेगुलर जॉब से भी ज्यादा इसमें अर्न कर सकते हो, ओके? क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पर बात करूं, तो जैसे कि आप फ्रीलांसर, अपवर्क पर देख सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पर आपको बहुत सारे क्लाइंट्स यहाँ पर मिलते हैं।
और जिसमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। ओके, तो हमारा काम सिर्फ वेबसाइट बनाना, ग्राफिक डिजाइनिंग करना नहीं है। हमारा काम वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराना, एड कैंपेन्स रन करना, बजट को मैनेज करना, ये सब हमारा काम है। जैसे गूगल पर आपने इस वेबसाइट को रैंक कराया, राइट, उसके साथ साथ अगर आपको इसके लिए कुछ कैंपेन्स को रन करना है तो आप गूगल एड्स की हेल्प से अलग अलग कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, दिस इज योर गूगल एड्स अकाउंट, राइट। गूगल एड पर हम लोग अपने कैंपेन्स को रन कर सकते हैं किस तरीके से, देखिएगा। ये देखो, ये हमारा गूगल एड्स अकाउंट है। यहाँ पर आप सर्च विच इज फॉर गूगल, डिस्प्ले कैंपेन जिसका मतलब होता है अलग अलग वेबसाइट्स पर अपने कैंपेन को रैंक कराना, राइट। शॉपिंग कैंपेन जिसका मतलब होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स को रैंक कराना, राइट। वीडियो कैंपेन जिसका मतलब होता है यूट्यूब पर अपनी एड्स को रैंक कराना, और एप्लीकेशन जिसमें हम गूगल प्ले स्टोर पर अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा सकते हैं। और इन्हीं सब का एक सम है हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन, जिसे आज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसका मतलब होता है गूगल के फर्स्ट पेज, अलग अलग वेबसाइट, शॉपिंग, वीडियो, एप्लीकेशन, हर जगह अपने प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस को दिखाना। हमारी ऑडियंस जैसे ही हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे उसके बाद हम गूगल को पेमेंट दें, या फिर जैसे ही हमें लीड मिलती है उसके बाद हम पेमेंट दें, राइट। सो गूगल एड्स इज फॉर गूगल, मेटा इज फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग टूल्स हम इस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। मेटा में हम मेटा एआई का भी यूज करते हैं, जो कि हमें हमारी इमेजेस या वीडियोस जनरेट करने में, एड कॉपी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताई, ये सभी चीजें आप इस कोर्स में बिल्कुल डिटेल में सीखने वाले। ओके, तो ये सभी चीजें आपकी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। अगर आप बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए किसी भी प्रायर एक्सपीरियंस या किसी भी प्रायर आपकी ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, राइट। इफ यू आर इन 10th, इन दैट केस यू ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, राइट। अगर आपका कोई करियर गैप है तब भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, राइट। क्योंकि जैसा कि आपने देखा इन मॉड्यूल्स, यू विल लर्न फ्रॉम द बेसिक ओनली, बिल्कुल बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, इस कोर्स के दौरान आप बहुत सारी केस स्टडीज भी सीखेंगे। जैसे कि अगर मैं रियल टाइम केस स्टडीज की बात करूं, राइट, आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी ईमेल कैंपेन्स की हेल्प से कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया, कार्स 24 ने किस तरीके से एड कैंपेन्स को रन किया कि उसको सबसे बेटर ग्रोथ मिली है, राइट, विद इन 2 years, राइट। तो ये सारी चीजें आप इस कोर्स में लाइव केस स्टडीज की हेल्प से सीखेंगे। ओके एवरीवन, so this is all about from my side in this particular session only, right, about the digital marketing। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग इस कोर्स के दौरान पढ़ने वाले हैं। Now if you have any question, any query, then you all can ask, everyone। Anyone have any question, any query, anything else you want to know? इसमें एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या चाहिए, एक पहला सवाल मेरा ये था। ओके, और दूसरा, हमारे पास क्या टूल्स आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपने थोड़ा बहुत बताया एलिमेंटर फ्लो वगैरह सब देंगे। और अगर हमारे को सेशन के बाद कोई डाउट होता है, कुछ पूछना होता है किसी चीज में, तो उसका क्या कोई प्रोविजन है आपसे कम्युनिकेशन का? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। यस, देखो, सबसे पहला आपने पूछा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इफ अ स्टूडेंट, अगर एक 12th क्लास स्टूडेंट है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इन केस आपका कोई करियर गैप है, बहुत टाइम से आप एजुकेशन के टच में नहीं है, तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द रीजन इज कि इस कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जो चीजें आज हम अपने लाइफ में देख पा रहे हैं, राइट, जो चीजें आज हम यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, उन्हीं सब चीजों पर हम मार्केटिंग करने वाले हैं, राइट। यानी कि जो हमारी टूल्स हैं हम उनसे ऑलरेडी फैमिलियर हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से हम फैमिलियर हैं। अब इसमें क्या चीजें हैं जो हमें सीखनी है, वो है हमारी स्ट्रैटेजीज एंड हमारे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। जैसे फेसबुक आपको पता है, राइट, लेकिन फेसबुक मार्केटिंग के लिए मेटा आपको नहीं पता, तो मेटा आप सीखोगे, ठीक है। दूसरा आपने पूछा कि मैं कौन से टूल्स इस कोर्स के दौरान आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो जितनी भी मॉड्यूल्स और स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई, लाइक फॉर फेसबुक मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया वी विल यूज मेटा,
मेटा के साथ साथ हम बहुत सारे एआई टूल्स भी यूज करेंगे. वी विल यूज जेस्पर, राइट, वी विल यूज परप्लेक्सिटी. उसी के साथ साथ चैट जीपीटी, जैसे अभी आपने देखा, फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड फॉर कस्टमर एनालिसिस ऑल्सो. तो आपके पास मोर देन 30+ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड मोर देन 30+ एआई टूल्स इस कोर्स के दौरान रहेंगे, अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं, राइट. क्योंकि हर मॉड्यूल्स में मल्टीपल टूल्स लिस्टेड हैं. जैसे ईमेल मार्केटिंग, जिसके लिए आप मेलचिम पढ़ेंगे. मेलचिम के साथ साथ आप टीआई डीआईओ चैटबॉट पढ़ोगे, राइट. उसके साथ साथ हमें कुछ सर्विस कंडक्ट करने होते हैं, तो आप उनके लिए भी अलग अलग टूल सीखोगे, राइट. जैपियर सीखोगे फॉर मार्केटिंग ऑटोमेशन. तो ये सभी टूल्स आपके लिस्टेड हैं. अगर मैं क्वेरीज की बात करूं तो आप सबको एक एलएमएस पोर्टल दिया जाएगा, जहां पर आपके जो भी कंसर्न है, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप ले सकते हो. सेकेंडली, आप डेली क्लासेस के टाइम पर भी अपनी क्वेरीज ले सकते हो. जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपने इस क्लास को अटेंड किया, इस क्लास के बाद आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप यहाँ पर लेंगे, और उसके बाद जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उन सभी की क्वेरीज आप नेक्स्ट डे अपनी क्लास से पहले लेंगे. ठीक है, तो ये प्रोसीजर भी आपका रहेगा. ओके दीपक, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? बस मैं एक चीज ये पूछनी थी, जैसे मैं अपना फ्रीलांसिंग का काम करना चाहता हूँ ओके, दैट्स फाइन. कोर्स के थ्रू, क्या ये मेरे को इम्प्रूव करेगा? मुझे इसमें से बहुत सारी चीजें की हुई हैं, मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, ओके बट ओके. मैं अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, तो ये कोर्स जो है वो मुझे अपस्किल करेगा? डेफिनेटली दीपक, बट अभी रिसेंटली अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में बात करूं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में मतलब किन टूल्स की नॉलेज है? मैम देखो, मैं फेसबुक वगैरह सब चीजें जो है वो करता हूँ, कुछ क्लाइंट्स के लिए करता हूँ, ठीक है. लेकिन क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज क्लाइंट्स हैं तो फिर मैं उनसे उनका पासवर्ड वगैरह ले लेता हूँ, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता. दैट इज नॉट, मतलब वो ठीक नहीं है. अगर कोई ऐसा प्रोविजन हो ना जिससे मुझे उनके पासवर्ड की जरूरत ना पड़े, उनसे यस एक्सेस. यस, यू कैन ओनली टेक एक्सेस. आप सिर्फ उनसे उनका एक्सेस ले सकते हो अपनी ईमेल आईडी पर. जो मेन अकाउंट यूज होंगे वो आपके अपने ही रहेंगे, उन सबसे डायरेक्टली उनका एक्सेस लेकर हम मार्केटिंग कर सकते हैं. वी तो डोंट फिर नीड एनी आईडी पासवर्ड. फंड्स वगैरह जो जमा करेंगे वो मैं अपने अकाउंट में जमा करूंगा, क्योंकि मैं चाहता नो हूँ नो कि वो नो. वहाँ पर shop होंगे तो. हाँ. दीपक, इसके लिए जो हमारा अकाउंट होता है, हम अकाउंट में अमाउंट ऐड करते हैं. ठीक है, तो जो भी आपके अमाउंट में एक्सपेंसेस आएंगे आपके क्लाइंट के, वो आप अपने क्लाइंट से बिलिंग टाइम पर एडजस्ट करा सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि आपको उनसे कुछ भी लेना है. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं वो खर्चा अपने अकाउंट से कर सकता हूँ ना, उनसे तो बिल्कुल लेने. कर सकते हो, अकाउंट आपका रहेगा, सिर्फ आपके क्लाइंट का एक्सेस आपको मिलेगा, राइट. जो पेज एक्सेस है सिर्फ वो आपको मिलेगा. ठीक है, ये सब ठीक है. सिखाया जाएगा, है ना? यस. चलिए, थैंक यू सो मच. मेरे को मेरी एक क्वारी थी, बाकी आप और लेवल से पूछ लेते हैं. ओके दीपक, दैट्स फाइन. ओके एवरीवन, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी एनीवन हैव? इसमें मॉड्यूल में जो जो टूल्स यूज होगा वो सब एआई होगा कि कोई और भी टूल्स यूज होगा? रोहित, 30+ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड 30+ एआई टूल्स, राइट. डिजिटल मार्केटिंग वो टूल्स का मतलब, जैसे वो आप कैनवा का बता रही थी ना, राइट. तो वैसे ही मैंने कैनवा के अलावा कोई और, जैसे और कोई ऐप वगैरह जिसमें कैनवा तो नॉर्मल भी होता है, जिसमें एक कैनवा प्रो भी आता है, राइट. उसमें तो कैनवा प्रो के लिए हमको मैंने वो एक्सेस लेना पड़ेगा, उसके लिए पेड वगैरह वो होता है. वैसा में कोई पेड वगैरह तो नहीं ना है, आपको या खुद बता दिया एक्सेस जाएगा, लेना आपको पड़ेगा? उसका कैनवा का भी बता दिया जाएगा कि आपको जो कैनवा का पेड टूल है आप उसको विदाउट पे कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर दिया जाएगा. यस रोहित, यू विल गेट. रोहित, कैनवा, एलिमेंटोर, राइट, ऑल इन वन एसईओ प्रो, मल्टीपल टूल्स आपको मिलने वाले हैं, जिनका प्रीमियम वर्जन आपको मिलेगा. ओके. यस. प्रीमियम मतलब आप लोग ही प्रोवाइड कराइएगा बिल्कुल प्रीमियम बिल्कुल, वर्जन? हम आपको प्रोवाइड करेंगे. आई विल प्रोवाइड. इनका इनका क्वेश्चन मैडम ये है कि ये टूल हमें परचेज तो नहीं करने पड़ेंगे, आप फ्री नहीं, उसको यूज कैसे हाँ करना हाँ, है वो वही सिखाया मैंने, जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिन बाद बोला जाएगा कि परचेज करिए आप ये वो. कैनवा नो को नो, भी आपको कैनवा कुछ भी को भी हम परचेज फ्री नहीं में करना. यूज कर सकते हैं. वो आपको बता देंगे कि कैसे यूज करना है उसको. जो कितने टाइम? पेड वर्जन है उसको फ्री में कैसे यूज करते हैं वो आपको सिखा देंगे. मैम कितने दिनों तक वैलिड रहेगा ये? ये आपका बैलेंस रहेगा, आप उसको दोबारा उसको एक्सेस करके हम उसको सिखा देंगे कि कैसे आपको बार बार वो करना है. ठीक वो आपका जो पेड वर्जन है वो फ्री में हो जाएगा. है, ओके. ठीक है. अच्छा सर, ये जो आपकी डेली क्लासेस हो रही है इनकी एक वीडियो हमें मिल जाया करेगी? जी, यस. 24 आवर के बाद सर आपके उसमें पैनल में आपके ऐड हो जाएगा. ओके ओके सर, थैंक यू. ओके एवरीवन,
So this is all about from my side in this particular session, everyone. Thank you so much, everyone, and have a nice day. Thank you all. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I just want to ask to the students how you like the class. Please drop your feedback on the Zoom chat box so that it will help us to just drop your feedback. That's nice. What about others? Thank you so much, everyone, for your valuable feedbacks. It was really a great interaction with all of you. Yeah, thank you all. Thank you, ma'am, once again. Everyone, you can leave the class. Thank you.